It's been 2 weeks since the girl was brutally gang raped in Delhi, 4 days since she passed away. Prime Minister Dr. Manmohan Singh ended the year with a declaration that safety and security of women is of highest concern for his government. The Congress chief promised justice will be done. 2013 is here. Nothing looks even close to changing on the ground. The sexual predators are still hunting and there's nobody, sadly, to stop them. 17 rapes in the past 15 days. Who will own up this injustice? जब तक सूरज चांद रहेगा, कभी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, कभी तेरा नाम रहेगा। We want justice, justice, justice. We've seen 2 weeks of outrage demanding change. We have appointed a committee to suggest ways and means of modifications in the crime against women. Also, a committee under Justice Usha Mehra has been appointed. We've seen 2 weeks of promises and platitudes. Here's the reality. Brutal, horrific, traumatizing, unending. Headlines Today has reported 17 instances of gang rape and sexual assault since December 16. Scores more have gone unreported. From Delhi to Jammu to Bangalore and Mumbai, from the villages of UP and Madhya Pradesh, women have been assaulted, brutalized and gang raped. Beyond the protests, the value of strong deterrence and police action cannot be ignored. जो दिल्ली आरोपी उनको बेल ली, उनको फांसी दो, सीधे फांसी, कोई बेल नहीं, कुछ न, जिंदा फांसी देनी चाहिए. Platitudes is not action. The law has not been changed. There's no clarity on when it will be. 6 rape-accused MLAs sit in legislatures across India. The majority of cops in metros remain on VIP duty. 4 years of promises on increasing the number of women police officers have gone unkept. And there's still no clarity on fast-track courts across India, not just Delhi. मेरी ओर से प्रधानमंत्री को दिया गया कि वो संसद का विशेष सत्र बुलाएं और जो मौजूदा कानून है उसको और ज्यादा कठोर बनाने के लिए संशोधन लेकर आए. दूसरा सुझाव कल मैंने गृह मंत्री जी को दिया कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए. केवल पकड़ने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर आगे चलकर तो जो लोग इस किस्म की वारदातें करने का वो जो कोशिश भी वो ना करें तो और ये वारदातें आगे रुके. How many brave hearts need to suffer before the change? Is it not clear following the protests that only strong deterrence can bring about the change? Why has the government not called a special session or issued an ordinance? With camera person Lokendra Kumar and Mahar Siddiqui, Atir Khan in Delhi for Headlines Today. And joining me now on center stage is Women and Child Development Minister Krishna Tirath. Welcome on Headlines Today, ma'am. Shashi Tharoor, your colleague, has suggested that the new rape law should be amended. It should be named after the victim. Now, is this the tribute, the rightful tribute to the brave girl, or should the contents of the law be the real tribute? मैं समझती हूँ कि ये बात किसी के इंडिविजुअल विचार हो सकता है, लेकिन ट्रिब्यूट देना नहीं देना, इतना पूरा देश का हर राज्य, हर नौजवान, हर व्यक्ति अपने ट्रिब्यूट अपने अपने तरीके से दे ही रहा है. कहीं पीस मार्च करके, कहीं कैंडल मार्च करके. लेकिन इस समय जरूरत है कि इस तरह के अंजाम देने वाले व्यक्ति को कैसी सजा दी जाए, उसको सख्त से सख्त सजा मिले, जिससे देखने वालों को ये पता चले कि अगर ऐसा क्राइम कोई करता तो उसको कौन सा सजा मिली है. और भविष्य में ऐसा ना हो, उसके लिए हमें बहुत ही कठोर कदम उठाने की जरूरत है. जिस तरह से हम लोग अवेयरनेस चाहते हैं, पब्लिक में अवेयरनेस हो, उनको सेंसिटाइज हो, जेंडर सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए और ये शिक्षा बच्चों को घर से, स्कूल से मिलनी चाहिए.
और खास तौर से जो हमारा एक पुरुष वर्ग है, जो हम कहते हैं कि मेल डोमिनेटेड हमारी सोसाइटी है, उसकी मानसिकता में थोड़ा सा बदलाव ये आए कि वो महिला का और बच्ची का मान सम्मान करे, उसका जो अधिकार है उसको अधिकार से जीने दे, और अपने जीवन में, जिस स्वतंत्र भारत में पूरी आजादी है महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ने की, लिखने की, खेलने की, कूदने की, अपना क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ काम करना है, ये सब स्वतंत्रता के साथ हमारी मानसिकता अगर अच्छी है तो इसमें, इस परिवेश में, भारत की इस संस्कृति में हम आराम से रह सकते हैं, और महिलाओं को भी पूरा जीने का जो हक है उनको उस अधिकार के साथ भारत का अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें रास्ते देने चाहिए। जी, शब्द बहुत अच्छे हैं कृष्णा जी, लेकिन वो कदम अभी तक उठाए क्यों नहीं जा रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि जो कुछ सरकार कह रही है केवल सांकेतिक है। ऑल दिस इज जस्ट सिंबॉलिक। Where is the concrete action? What has the government done since the 16th of December? ये मैं समझती हूँ, मैंने कहा जैसे कि इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, और सेंसिटाइज करने की जरूरत है। लॉ हमारे पास है, एक्ट हमारे पास है, उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली करें, इसके ऊपर हमारा सबका विचार हो रहा है। और मैं समझती हूँ जो अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ होम से मीटिंग है, उसमें इन बातों को तय करेंगे कि कैसे हो। लेकिन ये जो सोशल इविल है, एक तरह की सामाजिक बुराई है, इसको दूर करने के लिए स्कूल से और घर से बच्चे को पूरी तरह से ट्रेनिंग मिले, तो जिसे बड़े होने तक वो एक सशक्त नागरिक बन के उठे और भारत में जिस तरह की जो बुराइयां हैं उनको वो दूर कर सकें। और आज का माहौल बता रहा है कि इन बुराइयों को जल्दी दूर होना ही होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी जाग चुकी है। सड़कों पे देखो, पूरे देश भर में, हर राज्य में युवा वर्ग आगे बढ़ा है, और उनके साथ साथ उनके माता पिता, भाई बहन, बड़े भाई बहन सब उनके साथ हैं, और वो चाहते हैं कि इस तरह की बुराई हमारे बीच में से निकलनी चाहिए और एक अच्छा वातावरण बने। इस अच्छे वातावरण में भारत के अच्छे नागरिक बन के हर महिला भी और पुरुष भी आगे बढ़े। जी, युवा वर्ग जाग चुका है, लेकिन सरकार की नींद कब टूटेगी, सवाल यह है। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स दैट वी हैव हियर ऑन हेडलाइंस टुडे, देयर हैव बीन 17 केसेस ऑफ रेप्स इन द पास्ट 15 days. Does this not show that either you've done nothing or whatever you've done has failed? कृष्णा जी, 17 बलात्कार के मामले पिछले 15 दिन में सामने आए हैं। इसका मतलब क्या है? या तो आपकी सरकार ने कुछ किया नहीं है, अगर किया है तो उसका कोई असर नहीं है। I think government is doing good. The laws are there, but how to implement these laws? इसके बारे में जानकारी देना, मैंने पहले कहा अवेयरनेस होना चाहिए। वी हैव टू सेंसिटाइज पुलिस, वी हैव टू सेंसिटाइज एवरी वुमेन कि कैसे उसको पता होना चाहिए कि उसके अधिकार क्या हैं, और फिर जो इम्प्लीमेंट होना है वो ठीक होना चाहिए। खासतौर से मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। और जितने केसेस आ रहे हैं ये मुझे लगता है एक मानसिकता की वजह से आ रहे हैं, और हर जो एनजीओ हैं, विमेन एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छी उन्होंने बातें कही। मैंने एक मीटिंग अभी फ्राइडे को अपने ऑफिस में ली थी, और सबने आके एक ही बात कही कि हमें पुरुष मानसिकता को बदलना है, उसमें बदलाव आना है। मीन्स उसमें मान सम्मान जो हमारी भारतीय संस्कृति में है कि महिलाओं को पूरा सम्मान मिले। जैसे अभी देख रहे हैं हम फीमेल फिटिसाइड की बात आई, या चाइल्ड डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो की बात आई। ये सब चीजें तो लगता है कि हम लोग किस पीढ़ी में चल रहे हैं और हमें कहाँ पहुंचना है। इस बात को दुरुस्त रखने के लिए देखना यह है कि हमें कौन से और कदम उठाए जाएं, कैसे हम आम जनता के साथ मिलके उनकी जो सोच है, उसकी जो विचारधारा है, एनजीओज भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है, लॉ भी वहां है, इम्प्लीमेंट उसे प्रॉपर करना है उनको, और अवेयरनेस भी होना चाहिए कि किस तरह के लॉ उनके हक में बने हैं, और वो उस लॉ के ऊपर काम करें जिससे भारत की संस्कृति के साथ साथ एक स्वतंत्र भारत में सभी को आजादी हो, हर तरह से वो जा सके और अच्छे नागरिक बन सके। इसकी अब सोच की जरूरत है। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि आखिर ये काम कौन करेगा? आप भारत सरकार हैं, यू आर द गवर्नमेंट। Now, you know, the Delhi BJP chief says, give an Ashok Chakra to the victim. Do you support this demand, or do you think that he is also just politicizing the issue? What we see is a lot of politics, a lot of words. We don't see any concrete action on ground to make
India safer for women? ये मैं समझती हूँ, मैंने कहा जैसे कि इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है और सेंसिटाइज करने की जरूरत है। लॉ हमारे पास है, एक्ट हमारे पास है, उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली करें, इसके ऊपर हमारा सबका विचार हो रहा है। और मैं समझती हूँ जो अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ होम से मीटिंग है, उसमें इन बातों को तय करेंगे कि कैसे हो। लेकिन ये जो सोशल इविल है, एक तरह की सामाजिक बुराई है, इसको दूर करने के लिए स्कूल से, घर से बच्चे को पूरी तरह से ट्रेनिंग मिले, तो जिससे बड़े होने तक वो एक सशक्त नागरिक बन के उठे और भारत में जिस तरह की जो बुराइयां हैं उनको वो दूर कर सकें। और आज का माहौल बता रहा है कि इन बुराइयों को जल्दी दूर होना ही होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी जाग चुकी है। सड़कों पे देखो, पूरे देश भर में, हर राज्य में युवा वर्ग आगे बढ़ा है और उनके साथ साथ उनके माता पिता, भाई बहन, बड़े भाई बहन सब उनके साथ हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह की बुराई हमारे बीच में से निकलनी चाहिए और एक अच्छा वातावरण बने। इस अच्छे वातावरण में भारत के अच्छे नागरिक बन के हर महिला भी और पुरुष भी आगे बढ़े। क्या पहला कदम सरकार उठाएगी? नेताओं को दिशा दिखानी चाहिए। People in this country are saying ban those members of parliament and members of legislative assembly who are facing rape cases. Should this not be the first step? What is your opinion? Will you initiate such an anti-rape initiative? जिन MLAs और MPs पर बलात्कार के संगीन आरोप हैं, सबसे पहले उन्हें संसद और विधानसभाओं से निकाल बाहर कीजिए। ये मैं समझती हूँ कि ये बातें बहुत देर से चली रही हैं। हर एक आदमी को, हर महिला को या हर पुरुष को अच्छा होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। ये सब चीजें पार्टी लेवल पे भी होती हैं, इलेक्शन में भी एक बहुत अभी चर्चा का विषय है कि क्या होना चाहिए, किसके अगेंस्ट कोई चार्जेस है, तब हम जाके कह सकते हैं कि MP MLA का किस तरह से वो मिले, टिकट मिले। जो आप इस तरह की बात करना चाहती हैं, मैं समझती हूँ इसके लिए बहुत ही विचार करने की अब जरूरत है देश में। और ये विचार एक साथ भी हो सकता है, अलग अलग पार्टीज भी अपना कर सकती हैं, सरकार भी कर सकती है, इलेक्शन कमीशन भी कर सकता है। ये सोचने के लायक बात है। Krishna Tirath, many thanks for joining me here on Center Stage. Let's hope the government thinks about it, but quickly and takes action. The time for thinking is long over. Now the nation wants to see action.